चल जाएगा माइक के इधर से अजून कोणी येतंय का सर वो कितनी आने वाली है शुरू कर दो फिर चलो एक ही टॉपिक बचा है ना ऑप्टिक्स ठीक है तो ऑप्टिक्स में हमें 3 कंसेप्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट स्टडी करने क्या बचता है कितने जाता है माझं शेवटचं लेक्चर आहे असं ठीक है चलो सो ऑप्टिक्स optics first is interference before interference we'll go to the 11th का जो पार्ट है that is ray optics है ना so ray optics में देखो पहले तो क्या है रिफ्लेक्शन first is what reflection अब जा रही है क्या देखो ऑप्टिक्स रिफ्लेक्शन क्या होता है रिफ्लेक्शन में हाँ so this is reflecting surface okay so this is incident ray and this is reflected ray ठीक है and what we know कि angle of incidence equals to angle of reflection angle of incidence is equals to angle of reflection ठीक है this is one important law related to reflection that is angle of incidence is equals to angle of reflection angle of incidence is equals to angle of reflection ठीक है then next is what refraction तो refraction में क्या है important point when the light goes from one medium to another medium okay the direction of incident ray changes okay the direction of incident ray changes तो ये देखो ये suppose incident ray है okay तो इसमें क्या है this is rarer medium and this is denser medium so when the ray of light goes from rarer medium to denser medium what happens it bends towards the normal and this is angle R this is angle I okay so what are the laws related to this so here we define what suppose this is absolute refractive index of medium 1 this is absolute refractive index of medium 2 okay absolute refractive index कब निकालते हैं so absolute refractive index क्या होती है absolute refractive index absolute refractive index तो ये क्या होता है absolute refractive index that is refractive index of medium 2
या रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेटिव, तो रिलेटिव को क्या लिखेंगे हम, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये क्या होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, that is refractive index of medium 2 with respect to 1 is equals to what, refractive index of medium 2 with respect to 1। ठीक है, तो ये क्या है, this is absolute refractive index of medium 1 and this is absolute refractive index of medium 2। अब इसको हम कैसे कब लिखते हैं, तो ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गई, ये क्या हो गई, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आपका ये जो फर्स्ट मीडियम है रेयरर मीडियम, ये अगर क्या होगा एयर और वैक्यूम होगा, मतलब मोर प्रेफरेंशियली क्या होना चाहिए, वैक्यूम। अगर ये वैक्यूम होगा और ये क्या होगा, वैक्यूम और एयर होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, इस रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, और ये देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम, ये कितना होता है, दैट इज μ1 इज इक्वल्स टू व्हाट 1, तो ये क्या होता है 1, तो ये क्या हो जाएगा μ21 इज इक्वल्स टू व्हाट μ2। अब इसको हम क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, समझ में आया, और इसके लिए लॉ क्या है हमारा, यस व्हाट आर द लॉज फॉर दिस, हाँ इसके लिए लॉ कौन सा है, स्नेल्स लॉ, कौन सा लॉ है, स्नेल्स लॉ क्या होता है, that is refractive index of medium 2 with respect to 1 is equals to what, ये देखो velocity of light in medium 1 upon velocity of light in medium 2 is equals to what, lambda 1 upon lambda 2, okay lambda 1 upon lambda 2, that is wavelength in medium 1 to wavelength in medium 2, and which is equals to what, this can also be written as what, that is sin I upon sin r, sin I upon sin r। ठीक है, means what, sin of angle of incidence to sin of angle of refraction is equals to what, refractive index, is equals to what, refractive index, okay, and this is also equals to what, μ2 upon μ1। ठीक है, so this is what Snell's law of refraction, this is important। ठीक है, अब लाइट जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, देन इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, राइट, ये देखो ये नॉर्मल है, तो लाइट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ओके, एंड व्हेन इट गोज फ्रॉम denser medium to rarer medium, denser medium to rarer medium, then it bends away from the normal, it bends, देखो मतलब सपोज लाइट ऐसी जा रही है, तो ये ऐसी जानी चाहिए थी, लेकिन ये क्या हो जाती है, इस तरफ बेंड हो जाती है। ठीक है, सो लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, समझ में आया, yes, so this is about the Snell's law, this is about Snell's law। Next point is what, this next point, okay, you know image formation, इमेज फॉर्मेशन आता है इन सबको, अरे इमेज फॉर्मेशन आता है या नहीं, ओके ये हो गया रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ओके नाउ रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस, देन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एंड मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, यस मिरर फॉर्मूला और मिरर इक्वेशन। okay first of all we'll see what that is reflection at curved surfaces, reflection at curved surface। तो क्या होगा रिफ्लेक्शन एट कर्व्ड सरफेस में, क्या क्या होता है बोलो, रिफ्लेक्शन एट कर्व्ड सरफेस, तो दिस इज व्हाट, इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स, इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर। मिरर दो टाइप के होते हैं, ये कौन सा है, दिस इज कॉनकेव मिरर, राइट, और ये क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब देखो इसमें जब रिफ्लेक्शन होता है तो हाउ द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, हाउ द रिफ्लेक्शन
टेक्स प्लेस। बोलो रिफ्लेक्शन कैसा होता है इसमें? तो ये क्या होगा इसका सी, ये क्या होगा इसका सी, देन ये क्या होगा इसका सॉरी, ये फोकल पॉइंट होगा और ये होगा सी। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके लिए ये होगा फोकस और ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो आपको पता है कि ऑब्जेक्ट को अगर कहाँ रखे तो इमेज कहाँ फॉर्म होती है। यस, यू नो दैट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट अगर कहाँ होगा, बियॉन्ड इंफिनिटी पे होगा, तो ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ फॉर्म होती है, फोकस पे। राइट, ये देखो ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे होगा तो ये ऐसा पैरेलल रे आएगा और इमेज कहाँ फॉर्म होगी, फोकस पे फॉर्म होगी। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होगा तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट अगर कहाँ होगा, सी पे होगा, तो इमेज भी कहाँ फॉर्म होगी, सी पे ही होगी। ठीक है, तो ये देखो अगर ये बियॉन्ड एफ होगा, मतलब ये सपोज क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, इमेज इन दोनों के बीच फॉर्म होगी। ओके, इमेज कहाँ फॉर्म होगी, सी और एफ के बीच फॉर्म होगी। तो इसको कैसे निकालते हैं हम, ऐसा निकालते हैं, ये मिरर ऐसा होगा, ये फिर से रिफ्लेक्ट होगा, इसी डायरेक्शन में आएगा, और जो दूसरा रे है वो यहाँ से आ रहा है फोकस से, तो ये यहाँ पे इमेज फॉर्म होगी। तो इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी एंड स्मॉलर इन साइज होगी, स्मॉलर इन साइज होगी। जब ऑब्जेक्ट का होगा, सी पे होगा, तो आपकी इमेज भी कहाँ बनेगी, सी पे ही बनेगी, लेकिन कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। समझ में आया? सो साइज सेम होगा। जब ऑब्जेक्ट का होगा, सी और एफ के बीच होगा, तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, बियॉन्ड सी फॉर्म होगी। ठीक है, ऐसी। ठीक है, समझ में आया? ओके, जब ऑब्जेक्ट का होगा, फोकस पे होगा, तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, इमेज जाएगी इंफिनिटी पे। ओके, एट इंफिनिटी। समझ में आया? और जब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, फोकस और पोल के बीच होगा, तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, बिहाइंड दिस। इमेज कहाँ फॉर्म होगी, बिहाइंड दिस। तो यहाँ पे ऐसी एक इमेज फॉर्म होगी, लाइक दिस। समझ में आया? सो दिस इज द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। ओके, और इसके लिए क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर के लिए ऑब्जेक्ट को आप कहां पे भी रखे तो इमेज हमेशा कहां फॉर्म होगी, बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन दिस पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच फॉर्म होगी। ठीक है, तो देखो ये इंफिनिटी पे होगी तो एग्जैक्टली कहां होगी, फोकस पे होगी। ये ऑब्जेक्ट जैसे जैसे पास आएगा तो इमेज भी क्या होगी, ऐसी पास आ जाएगी पोल के पास, लाइक दिस। समझ में आया? ये ऐसे पोल के पास आ रही है, ये ऑब्जेक्ट एकदम क्लोज आ जाएगा तो ये इमेज भी एकदम क्लोज आ जाएगी। राइट, तो देखो ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है तो इमेज ऐसे मूव कर रही है। यहाँ पे भी वही हो रहा था कि ऑब्जेक्ट जब यहां से यहां तक मूव करता है तो इमेज यहां से यहां मूव करती है। राइट, समझ में आया? ओके, सो इन दिस वे। और इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, मिरर इक्वेशन। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, मिरर इक्वेशन। सो मिरर इक्वेशन क्या होता है, that is 1 upon f is equals to 1 upon u plus 1 upon v, right, where u is what, object distance, v is what, image distance, and f is the focal length. ठीक है, और क्या रिलेशन होता है यहाँ पे, ये देखो ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर r। ओके, और ये क्या है, फोकल लेंथ f। तो यहाँ पे क्या रिलेशन होता है, r is equals to 2f, r is equals to 2f। ठीक है, समझ में आया? सो दिस इज इमेज फॉर्मेशन बाय कर्व्ड सरफेसेस, इमेज फॉर्मेशन बाय कर्व्ड सरफेसेस। वैसे ही आप किससे इमेज फॉर्मेशन कर सकते हो, लेंस से। ओके, लेंस से आपको जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा, दैट इज इमेज फॉर्मेशन बाय रिफ्लेक्शन। ओके, सॉरी, इमेज फॉर्मेशन बाय रिफ्रैक्शन, इमेज फॉर्मेशन बाय रिफ्रैक्शन। तो ये देखो ये लेंस है, दिस इज डबल कॉन्वेक्स लेंस। ये क्या है, डबल कॉन्वेक्स लेंस। अब इसमें क्या इसमें क्या डिस्टेंसेस होते हैं, ये होता है ऑप्टिकल सेंटर, ये होता है f1, राइट, ये होता है 2f1।
राइट। इधर क्या होता है, इधर होता है F2 और यहाँ होता है 2F2। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इमेजेस कैसे फॉर्म होती है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, फोकस पे होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, फोकस पे होगा। तो ये देखो, ये जो रे आता है, दिस इज फ्रॉम इंफिनिटी, दिस इज फ्रॉम इंफिनिटी। तो ऑब्जेक्ट कहाँ इंफिनिटी पे है, तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट जब कहाँ है, इंफिनिटी पे, तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, फोकस पे फॉर्म होगी। ओके, ऑब्जेक्ट हमेशा इंफिनिटी पे होगा तो इमेज हमेशा फोकस पे फॉर्म होगी, वेदर इट इज कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, कौन सी भी लेंस हो, कौन सा भी मिरर हो। तो अगर ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे, तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, फोकस पे, और ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, इंफिनिटी पे, राइट। सो दिस इज वाइस वर्सा ट्रू फॉर द एनी लेंस और दिस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट होगा, ओके, बियॉन्ड 2f, ऑब्जेक्ट जब कहाँ होगा, बियॉन्ड 2f, तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट जब बियॉन्ड 2f होगा तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, ये देखो, ये ऐसा रे जाएगा तो यहाँ पे फॉर्म होगी बिटवीन f1 एंड 2f1। ठीक है, बिटवीन f एंड 2f, राइट। और ऑब्जेक्ट जब कहाँ होगा, 2f2 पे होगा तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, एग्जैक्टली 2f पे फॉर्म होगी, राइट। अगर ये इसके बीच होगा तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, 2f2 के आगे, ऐसे, और एनलार्ज होती जाएगी, और क्या होती जाएगी, एनलार्ज होती जाएगी। ये जब यहाँ पे फोकस पे होगा तो ये जाएगी इंफिनिटी, राइट। और जब यहाँ होगा तो F2 और इसके बीच, तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, ये ऐसी इधर फॉर्म होगी, ओके, बिहाइंड द लेंस और इन द सेम साइड ऑफ द लेंस, जो जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा होता है वहीं पे इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, ये जो इमेज होती है ये कैसी होती है, दिस इज मैग्निफाइड एंड दिस इमेज इज मैग्निफाइड एंड वर्चुअल। ये कैसी होगी, वर्चुअल होगी। इसी को हम कहते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, इसी को हम क्या कहते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, समझ में आया। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इमेज फॉर्मेशन, दिस इज कंसेप्ट ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर एंड लेंस। ठीक है, इज इट क्लियर। ठीक है, तो कभी कभी इस पे क्वेश्चन आते हैं। और लेंस के लिए इक्वेशन, लेंस इक्वेशन क्या होता है, यस, व्हाट इज लेंस इक्वेशन, हाँ बोलो, दैट इज 1 अपॉन f is equals to at 1 upon v minus 1 upon u। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, दिस इज 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u, तो यहाँ पे प्लस होता है और वहां पे माइनस होता है। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट इज, नाउ नेक्स्ट इज, अगर आपको अपरेंट डेप्थ निकालनी है, क्या निकालनी है, अपरेंट डेप्थ, अपरेंट डेप्थ। तो अपरेंट डेप्थ कैसे निकाला जाता है, दैट इज रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द अपरेंट डेप्थ। ठीक है, मतलब रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिव्स यू अपरेंट डेप्थ। ठीक है, नेक्स्ट इज, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है, यस, व्हेन द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस,
बोलो। हाँ, when the light travels from denser medium to rarer medium, denser medium to rarer medium. So ये मिटा दो। Now see, next is what? Next is total internal reflection. Total internal reflection. ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अब यहाँ पे क्या होना है, दिस इज, ये है आपका रेयर मीडियम, राइट, और ये है आपका डेंसर मीडियम। ओके, और ये देखो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है। ओके, यहाँ पे क्या है, कोई ऑब्जेक्ट रखा है विच इज अ लुमिनस। एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, लुमिनस ऑब्जेक्ट है। लुमिनस मतलब जिसको खुद की लाइट है, जिसको क्या है, खुद की लाइट है, मतलब इट कैन ग्लो। ठीक है, तो देखो यहां से जो रेज निकलेंगे वो कैसे जाएंगे, दिस रे विल ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। अगर वो नॉर्मल के डायरेक्शन में जाता है तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाता है, वो हमेशा कैसा जाता है, स्ट्रेट लाइन में, राइट। और जो रे ऐसा जाएगा by making certain angle with this normal, then it will bend away from the normal, right, because the light is traveling from denser medium to rarer medium, right। मतलब यहाँ पे ये सपोज एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 है, तो यहाँ पे ये सपोज एंगल ऑफ ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, I1 सॉरी R1। ठीक है, और क्या होगा, देखो ये लाइट जब ऐसी जाएगी, राइट, तो यहाँ पे ये और बेंड हो जाएगा, तो ये होगा एंगल I2 और ये होगा एंगल R2, राइट। और ये अगर जब ये रिफ्रैक्टेड रे क्या हो जाता है, पैरेलल टू सरफेस, तो यहाँ पे जो एंगल होता है, दिस इज क्रिटिकल एंगल, तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा ये होगा 90, राइट। ये देखो ये क्या है, ये होगा I3, ये क्या होगा I3 एंड विच इज इक्वल्स टू व्हाट, IC, विच इज इक्वल्स टू IC। अब ये देखो ये डेंसर मीडियम है और रेयर रेयर मीडियम है, तो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है एंड इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे स्नेल्स लॉ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे स्नेल्स लॉ के लिए, फॉर दिस रे, ये जो रे है, जो रे क्या हो रहा है, पैरेलल हो रहा है इसको, तो आप क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, राइट। ये लाइट कहां से सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में जा रही है, इसलिए आपको क्या लिखना है यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, मतलब ये क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे आप, इसको लिखेंगे साइन I अपॉन साइन R, राइट। अब ये क्या है, दिस इज R3, दिस इज I3, लेकिन इस एंगल पे ये R3 कितना हो जाता है, 90 हो जाता है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, और इस I3 को हम क्या कहेंगे, IC, दैट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल एंगल, और ये क्या हो जाएगा, साइन 90 हो जाएगा, राइट। तो साइन 91 हो जाता है, राइट। सो साइन IC इज इक्वल्स टू व्हाट, ध्यान में रखना अच्छे से, साइन IC इज इक्वल्स टू व्हाट, μ1 अपॉन μ2, μ1 upon μ2 means what is this, this is refractive index of rarer medium, rarer medium upon, this is refractive index of denser medium। ठीक है, तो ये denser medium का होगा,
डेंसर मीडियम। समझ में आया? ये किसका होगा? डेंसर मीडियम, राइट। तो ये म्यू1 अपॉन म्यू2 है। व्हाट इज दिस? म्यू1 अपॉन म्यू2, राइट। और ये जो फर्स्ट मीडियम है, ये फर्स्ट मीडियम आपका अगर एयर होगा या क्या होगा? वैक्यूम होगा। ये सपोज वाटर होगा, ये डेंसर मीडियम है आपका। और ये क्या है? रेयर मीडियम। जनरली टोटल इंटरनल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहाँ होता है? अर्थ सरफेस पे होता है। तो जो रेयर मीडियम होता है वो क्या होता है? जनरली एयर होता है, राइट। तो ये रेयर मीडियम एयर एयर होगा, तो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी होगी? 1। मतलब ये क्या हो जाएगा? इफ रेयर मीडियम if rarer medium is air, if rarer medium is air, then mu1 will become equals to what? mu1 will be equals to 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? sin ic is equals to what? 1 upon mu2, 1 upon mu2। ठीक है, ये ध्यान में रखना। ये भी कभी कभी आपको दिया होता है और ये भी दिया होता है, जस्ट लाइक अ ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में दोनों मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दी होती है, तो हमेशा आप सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसकी? डेंसर मीडियम की नहीं लेंगे। ओके, तो दोनों की ध्यान, इसलिए ध्यान में रखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम अपॉन डेंसर इज इक्वल्स टू साइन आईसी। ठीक है, या ये देखो, तो साइन आईसी क्या हो जाएगा? अगर ये एयर मीडियम है तो ये क्या हो जाएगा? म्यू2। दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। तो ये क्या हो जाएगा? आईसी इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन म्यू2। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरह आप इसका क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हो। इस तरह आप क्या कर सकते हो? क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप वाटर के लिए निकालो। सो फॉर वाटर एंड एयर सिस्टम, वाटर एयर के लिए क्या होगा? वाटर और एयर के लिए क्या होगा? बोलो। तो वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है विथ रिस्पेक्ट टू एयर, वाटर का कितना होता है? वाटर का होता है 4/3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? देखो, सो इसके लिए जो साइन आईसी होगा वो कितना होगा? आईसी इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन म्यू2। मतलब ये हो जाएगा 1/4/3, राइट। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 3/4। ठीक है, और 3/4 मतलब कितना होता है? साइन इनवर्स ऑफ 0.75। ओके, ये हो जाएगा क्रिटिकल एंगल फॉर द वाटर, क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर एयर सिस्टम। वाटर एयर सिस्टम के लिए ये क्रिटिकल एंगल हो जाएगा। समझ में आया? और वो ग्लास एयर सिस्टम के लिए, फॉर ग्लास एयर सिस्टम, for glass air system what you'll have, that is refractive index of glass with respect to air। तो ये कितना होता है? ये होता है 3/2। ये क्या होता है? 3/2। ठीक है, ये होता है 3/2। तो साइन आईसी कितना बन जाएगा? या आईसी कितना बन जाएगा? आईसी बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ कितना होगा? ये 2/3, राइट। और 2/3 कितना होता है? 0.66। ये कितना होता है? 0.6667। okay, then from that table you can find out this critical angle। okay, from the table you can find out the critical angle। ठीक है, तो ग्लास के लिए जनरली ये आईसी कितना होता है? ये होता है 42। ये कितना होता है? 42 डिग्री। अब देखो, जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम अगर वो किससे ज्यादा हो जाएगा? आईसी से, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा, देन देयर विल बी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, इसके एप्लीकेशंस होते हैं ऑप्टिकल फाइबर, राइट। देन प्रिज्म, बाइनोकुलर्स, these are the applications of uh, this what we can say total internal reflection। ठीक है, समझ में आया? yes। then next is
Now refraction at single curved surface. Refraction at single curved surface. Okay, and lens maker's formula. Lens maker's formula and refraction at single curved surface. तो ये देखो ये single curved surface है, राइट यहाँ पे इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है, सपोज n1, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है n2, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला आएगा, दैट इज व्हाट, n2 माइनस n1 अपॉन r। ओके, n2 माइनस n1 अपॉन r इज इक्वल्स टू व्हाट, n2 अपॉन v, n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u, ठीक है। ये देखो ये क्या है, दिस इज इमेज डिस्टेंस, ये क्या है, इमेज डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट किस में फॉर्म, इमेज किस में फॉर्म हुई, दैट इज इन मीडियम 2, मतलब यहाँ से कोई रे आएगा और ये रे रिफ्लेक्ट होके ऐसा चला जाएगा, ठीक है। तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, यहाँ फॉर्म होगी, इमेज कहाँ फॉर्म होगी, यहाँ फॉर्म होगी, ठीक है, समझ में आया। तो ये देखो, तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस होगा दिस इज v, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा होगा, राइट, या आप इसको ऐसा ले सकते हो, तो ये होगा आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, ये होगा आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। तो ये देखो ये क्या है, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम अपॉन इमेज डिस्टेंस, इमेज का फॉर्म हुई है सेकंड मीडियम में, तो इमेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम अपॉन इमेज डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है फर्स्ट मीडियम में, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, and that is equals to difference in the refractive index divided by radius of curvature, divided by radius of curvature, ठीक है, समझ में आया, yes or no, yes। So this is what, refraction at single curved surface, refraction at single curved surface, single curved surface, ठीक है। Then lens maker's formula, lens maker's formula, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ठीक है। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या होगा, या लेंस मेकर्स इक्वेशन, दिस इज 1 अपॉन f इज इक्वल्स टू व्हाट, n माइनस 1, n माइनस 1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, 1 अपॉन r2, ठीक है, समझ में आया, यस। तो ये देखो ये आपका फर्स्ट सरफेस एंड सेकेंड सरफेस, ठीक है। तो ये देखो ये ऐसी लेंस होगी, ओके, तो इसके लिए ये फर्स्ट सरफेस है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा r1, राइट, और जो दूसरा सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा r2, ठीक है। सो ये किसके बीच रिलेशन है, फोकल लेंथ, देन रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर r2, रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर r2, इनके बीच का रिलेशन है, राइट। सो 1 अपॉन f, मतलब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, हमें निकालना है फोकल लेंथ, ओके, वी वांट टू मेक अ लेंस ऑफ डिजायर्ड फोकल लेंथ, और वो किस पे डिपेंड हो करेगा, दैट इज n, n इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द दैट ग्लास, ओके, ये जो ग्लास जिसका हम लेंस बना रहे हैं वो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट, और दिस इज r1 is what the radius of curvature of the first surface and radius of curvature of the second surface, ये होगा इस तरफ होगा आपका r1, है ना, ये होगा r1, और इस तरफ होगा ये r2, ठीक है, समझ में आया। so this is r1 and r2, is it clear, ठीक, ठीक है। सो दिस इज लेंस मेकर्स फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ठीक है, समझ में आया। अब देखो अगर ये कॉन्वेक्स लेंस होगी, कॉन्वेक्स लेंस होगी तो फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव, r1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा, r2 क्या होगा, निगेटिव होगा। ये अगर कॉन्केव लेंस होगी तो फोकल लेंथ निगेटिव आती है, r1 क्या होगा, निगेटिव होगा, और r2 क्या होगा, पॉजिटिव होगा, समझ में आया। so you have to use this convex lens, sorry, lens makers formula, then अब देखो इसको हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, टू कैलकुलेट द फोकल लेंथ, right, to calculate the focal length, and 1 upon f
इसको हम क्या कहते हैं, पावर ऑफ लेंस। इसको क्या कहते हैं हम, पावर ऑफ लेंस। सो पावर ऑफ लेंस P इज इक्वल्स टू 1/f। पावर ऑफ लेंस P इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, समझ में आया? इसका यूनिट क्या होता है पावर ऑफ लेंस का? हाँ, सही है, बोलो। डायोप्टर। ये क्या होता है, डायोप्टर, राइट? सो दिस इज द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, और वो बेसिकली क्या है, 1/f, और f क्या होता है, फोकल लेंथ। सो दिस इज 1/मीटर, 1/मीटर या पर मीटर होगा। ठीक है, अगर हम नंबर ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेस या कॉन्केव लेंसेस को एक साथ मिला देंगे तो व्हाट वी कैन से रिजल्टेंट फोकल लेंथ, रिजल्टेंट फोकल लेंथ। तो रिजल्टेंट फोकल लेंथ कितना होगा, अगर इफ वी हैव टू और मोर लेंसेस इन कॉन्टैक्ट, राइट? ऐसे हमने दो या दो से ज्यादा लेंसेस क्या कर दिए, कांटेक्ट में लगा दिए। इसकी फोकल लेंथ f1 है, इसकी फोकल लेंथ f2 है, इसकी फोकल लेंथ f3 है। तो नेट फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, दैट इज 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 एंड सो ऑन। ठीक है, इज इट क्लियर? सो दिस इज फॉर मोर देन वन लेंसेस, राइट? तो देखो क्या होता है कि हमें रे को, लेंस क्या करती है, रेज को बेंड करती है। रेज को क्या करती है, बेंड करती है, एंड बेंड टुवर्ड्स द, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस होगा उसके तरफ बेंड होता है। प्रिंसिपल एक्सिस जो होगा उसके तरफ बेंड होती है। समझ में आया? यस। तो पावर ऑफ लेंस क्या इंडिकेट करता है, दैट इज द बेंडिंग पावर ऑफ द लेंस। व्हाट इट इंडिकेट्स, बेंडिंग पावर ऑफ द लेंस। ओके, मतलब एक जो लेंस होगी वो उस रे को कितना बेंड करती है, उस रे को क्या करती है, कितना बेंड करती है, दैट इज पावर ऑफ लेंस। तो जो थिन लेंस होती है, जो कैसे होती है, थिन लेंस होती है, वो कम बेंडिंग दिखाती है, लेकिन जो थिक लेंस होती है वो ज्यादा बेंडिंग दिखाती है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, रादर देन मेकिंग लेंस थिक, व्हाट वी डू, we make a arrangement of two or more than two lenses. Okay, we make an arrangement of two or more than two lenses. तो इसलिए इसका जो रिजल्टेंट फोकल लेंथ आएगा वो कितना होगा, 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो इसमें जैसे कि कौन कौन सा लेंस होगा, अगर कॉन्वेक्स लेंस होगा, क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस अगर होगा तो फोकल लेंथ क्या होगा, f होगा पॉजिटिव, राइट? और अगर कॉन्केव लेंस होगा, क्या होगा, कॉन्केव लेंस अगर होगा तो f कैसा होगा, निगेटिव होगा। f कैसा होगा, निगेटिव होगा। मींस हियर आल्सो यू कैन हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस। देखो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये एक कॉन्केव लेंस है, सॉरी ये कॉन्वेक्स लेंस है, और उसके साथ हमने एक कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस लगा दी, तो इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो कितनी होगी, इस कॉम्बिनेशन की, दैट इज 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 माइनस 1/f। ठीक है, या आप इस साइड से भी एक लेंस ले सकते हो ऐसा, राइट? तो ये भी कौन सी होगी, दिस इज कॉन्केव, दिस इज कॉन्वेक्स, और ये भी होगी कॉन्केव। ठीक है, समझ में आया? तो इसमें आप माइनस 1/f3 भी कर सकते हो। ओके, दैट इज डिपेंड्स कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड लेंस। ठीक है, समझ में आया? दिस इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर दो लेंसेस होंगे और वो कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड है, कुछ डिस्टेंस से कैसे वो सेपरेटेड है, तो उसकी फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे हम? Okay, means what we have, suppose we have two lenses, one is this and another is this, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, d है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, d। तो देखो इसका जो क्या आएगा, इसका जो फोकल लेंथ आएगा, रिजल्टेंट फोकल लेंथ विल बी व्हाट, 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d इनटू f1 f2।
ठीक है, तो इस तरह आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हो। एंड 1/f क्या होता है, पावर होता है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, 1/f is p, so p is equals to p1 plus p2 minus d into p1 p2। ठीक है, तो इस तरह भी आप इसको सॉल्यूशन कर सकते हो। ओके, देन dispersion of light, next is what, dispersion of light when the light passes through prism, when the light passes through prism, it splits into different colors, it splits into different colors, and that is called as uh, dispersion of light। ना, that is not scattering of light, scattering of light अलग होता है, ठीक है, dispersion of light अलग होता है, राइट। डिस्पर्शन में क्या होता है, हाँ, तो उसके जो व्हाइट लाइट जो होती है उसके जो कंपोनेंट कलर्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, मतलब व्हाइट लाइट स्प्लिट्स इनटू 7 डिफरेंट कलर्स, ओके, अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ, ओके, अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ, अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ, इसका मतलब क्या है कि जिसकी वेवलेंथ क्या होगी, सबसे कम होगी, उसकी बेंडिंग सबसे ज्यादा होगी, मतलब उसका एंगल ऑफ डेविएशन सबसे ज्यादा होगा, और जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी उसका एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम होगा। ओके, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है मतलब वॉयलेट लाइट, तो वॉयलेट लाइट की बेंडिंग सबसे ज्यादा होगी, और रेड लाइट जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है उसकी बेंडिंग सबसे कम होगी। ठीक है, मतलब जब लाइट, ये हो गया क्या, ये हो गया क्या आपका, चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हाँ, सो फॉर किसके लिए, फॉर डिस्पर्शन ऑफ लाइट, तो जिसकी वेवलेंथ क्या होगी, सबसे कम होगी, उसकी बेंडिंग सबसे ज्यादा होगी, मतलब एंगल ऑफ डेविएशन उसके लिए सबसे ज्यादा होगा। देखो इस पे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, और ये जो डेविएशन होता है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, यस, ये देखो हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा था किसके लिए, इंपॉर्टेंट नहीं है, देखो, हाँ, तो क्या कहा मैंने, ये जो बेंडिंग होती है ये किसके ऊपर डिपेंड होता है, दैट डिपेंड्स ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
दैट डिपेंड्स ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब देखो ध्यान दो कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसकी बेंडिंग ज्यादा होगी, है ना। हमने क्या देखा कि जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में पास होती है तो जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगी उसकी बेंडिंग ज्यादा होगी और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा वो कम होगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। तो वैसे ही फॉर डिफरेंट कलर्स के लिए क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होती है वो अलग अलग होती है। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगी वो अलग अलग होगी, और जिसके लिए जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सबसे कम होगी, और जिसकी नहीं सॉरी उसके लिए ज्यादा होगी। जिसका वेवलेंथ सबसे कम होगा उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा, और इसलिए एंगल ऑफ डेविएशन जो होगा वो सबसे ज्यादा होगी, बेंडिंग सबसे ज्यादा होगी। तो वॉयलेट कलर की जो बेंडिंग होती है वो सबसे ज्यादा होती है, और रेड कलर की जो बेंडिंग होती है वो सबसे कम होती है। हम्म? हाँ, रेड की वेवलेंथ ज्यादा है, तो रेड की वेवलेंथ ज्यादा है तो उसकी बेंडिंग कम होगी और एंगल ऑफ डेविएशन भी कम होगा। ठीक है, तो ये देखो, सपोज व्हाट वी हैव अ प्रिज्म, वी हैव ए प्रिज्म, और इस प्रिज्म से जब हमने किसी लाइट को पास किया, ये देखो, ये कौन सी है, व्हाइट लाइट। तो व्हाइट लाइट विल व्हाट, it will split into different colors, white light will split into different colors। ठीक है, तो ये क्या होगा, सबसे नीचे आएगा वॉयलेट कलर और सबसे ऊपर होगा रेड कलर। ठीक है, और ये देखो, ये लाइट ऐसी जा रही थी, राइट। तो इसका जो एंगल ऑफ डेविएशन है दैट इज से डेल्टा आर, और इसका जो एंगल ऑफ डेविएशन है सो दैट इज डेल्टा वी, राइट। तो इसमें क्या हुआ कि डेविएशन सबसे ज्यादा किसका हुआ, वॉयलेट का हुआ। ठीक है, यही से हम क्या डिफाइन करते हैं, एंगुलर डेविएशन। सो एंगुलर डेविएशन क्या होगा, एंगुलर डेविएशन, so what will be angular deviation, that is difference in the angle of deviation of two extreme colors, difference in angle of deviation of two different colors, so two extreme colors। दो एक्सट्रीम कलर्स कौन से, एक वॉयलेट है और दूसरा क्या है, रेड, राइट ना। इसके बीच क्या होगा, राइट, ये ऐसे 7 कलर्स होंगे, राइट, ऐसे 7 कलर्स होंगे, राइट। तो सबसे एक्सट्रीम कलर कौन से, वॉयलेट एंड रेड। तो इसमें क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वॉयलेट माइनस एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड, तो इसको हम कहेंगे एंगुलर डेविएशन। इसको क्या कहेंगे हम, एंगुलर डेविएशन, नहीं एंगुलर डेविएशन नहीं, एंगुलर डिस्पर्शन। इसको क्या कहेंगे, एंगुलर डिस्पर्शन। इसको हम कहेंगे एंगुलर डिस्पर्शन, that is difference in the angle of deviation between two extreme colors, difference in the angle between two extreme colors। ठीक है, तो ये हो गया एंगुलर डिस्पर्शन। देन दूसरा होता है डिस्पर्सिव पावर। दूसरा क्या होता है, डिस्पर्सिव पावर ऑफ दिस प्रिज्म। तो डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म, और एक ये जो प्रिज्म फॉर्मूला क्या होता है, प्रिज्म फॉर्मूला, व्हाट इज प्रिज्म फॉर्मूला, that is refractive index of medium 2 with respect to 1 is equals to sine of a plus delta m upon 2 divided by sine of a by 2, है ना, sine of a by 2। ठीक है, so this is called as prism formula। इसको क्या कहते हैं हम, प्रिज्म फॉर्मूला। ओके, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर is equals to what, sin of a plus delta m upon 2 divided by a by 2। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि if theta is small then what we write, sin theta is approximately equals to theta, so refractive index
is equals to what? Refractive index of prism is equals to what? We can write del A plus delta m, A plus delta m upon 2 upon A by 2. ठीक है, साइन को निकाल दिया हमने, राइट, साइन को कैंसिल नहीं किया, ये साइन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू थीटा लिखा है हमने, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और म्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? म्यू इज इक्वल्स टू ए प्लस डेल्टा एम अपॉन ए। ठीक है, समझ में आया? हाँ, तो देखो ये एंगुलर डिस्पर्शन है और इसमें ये क्या हो जाएगा? म्यू इंटू ए प्लस ए इंटू डेल्टा एम, ए इंटू डेल्टा एम। तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा एम इज इक्वल्स टू व्हाट वी कैन राइट? म्यू ए माइनस ए इज इक्वल्स टू व्हाट? म्यू माइनस वन इंटू ए। So delta m is equals to what? Mu minus 1 into a. ओके, तो हम क्या कर सकते हैं? हम डिफरेंट कलर्स के लिए ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, राइट। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? डेल्टा वी के लिए हो जाएगा म्यू वी माइनस वन इंटू ए, वेयर ए इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, दिस इज ए, है ना, दिस इज ए, दैट इज एंगल ऑफ प्रिज्म। सिमिलरली यू कैन राइट इट इज फॉर आर, तो ये क्या हो जाएगा? म्यू आर माइनस वन इंटू ए। ठीक है, इसको अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दे तो ये क्या हो जाएगा? देखो, डेल्टा वी, राइट। तो ये क्या है? म्यू ए माइनस ए, ये क्या है? सो ये म्यू वी माइन इंटू ए माइनस ए, राइट, माइनस ये क्या हो जाएगा? म्यू आर इंटू ए प्लस ए, राइट, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा और यह आ जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। ठीक है, समझ में आया? तो ये जो एंगुलर डिस्पर्शन होगा ये किसके ऊपर डिपेंड होगा? ये डिपेंड करेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट कलर टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर एंड एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है, तो ये हो गया, समझ में आया? उसके बाद हम डिफाइन करते हैं डिस्पर्सिव पावर, उसके बाद हम डिफाइन करते हैं क्या? डिस्पर्सिव पावर। ठीक है, तो डिस्पर्सिव पावर क्या होगा? दैट इज ओमेगा, इट इज व्हाट? ओमेगा। और ये क्या हो जाएगा? डेल्टा वाई। ठीक है, तो इट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन टू द डेविएशन ऑफ मीन कलर, और मीन कलर कौन सा लेते हैं हम? येलो कलर लेते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा, सो डिस्पर्सिव पावर क्या बन जाएगा? ये इसका ये दिस इज म्यू वी माइनस म्यू आर इनटू व्हाट? ए। और इसके लिए क्या लिखेंगे हम? इसके लिए क्या लिखेंगे? देखो, इसके लिए हम क्या लिखेंगे? ये म्यू वाई माइनस वन इंटू ए, तो ए कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा एंगुलर सॉरी डिस्पर्सिव पावर। अब डिस्पर्सिव पावर किसके ऊपर डिपेंड होगी? इट डिपेंड्स ओनली ऑन द मटेरियल, बिकॉज दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ओनली ऑन द मटेरियल। तो आपको फाइनली ये फॉर्मूला मिल रहा है, दैट इज व्हाट? म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई। ठीक है, समझ में आया? दिस इज एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। ठीक है, समझ में आया? तो ऐसा हम इसके लिए डिस्पर्सिव पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। सूरज, देवेश सर को पूछना इंक है क्या? इंक
आगे देखो, आहे का तसं? बरोबर. लेक्चर थोडं लवकर येईल. उद्या थांबताय ना तुम्ही? उद्या थांबताय का जाणार आहे आज? अच्छा, लोकल आहे का? कोण कोण लोकल आहे? हा? अच्छा, हॉस्टेलवाले सगळे गेले? तुम्ही सगळे लोक? हा नाही, पण तुम्ही सगळे लोकल आहे का इथं? तुझं नाव काय? ईशा. तुझं? अक्षदा. तुझं? शिवानी. तुझं? प्राजक्ता. सूरज. लक्ष्मीकांत. ठीक आहे, चलो. माझं नाव माहिती आहे ना तुम्हाला? ठीक है, चलो, समझ में आया? काय? ठीक है, नाउ सी सम क्वेश्चंस. हाँ, क्वेश्चन सॉल्व करो अपन. चौहान सर. उत्तम चौहान सर. तो देखो, क्वेश्चन नंबर पीवाई क्यू सॉल्व करूं. A ray of light traveling through rarer medium is incident at very small angle I on a glass slab, and after refraction its velocity is reduced by 20%. The angle of deviation is हाँ, फर्स्ट पार्ट. हाँ, कसं सॉल्व करणार रे?
चला कसं करायचं. A ray of light traveling through rarer medium is incident on at very small angle I on the glass slab. Okay, after reflection its velocity reduced by 20%. तो देखो क्या होता है. So refractive index of medium 2 with respect to 1 is equals to what? Sin I upon sin R. Sin I upon sin R. ठीक है. Now if the angle is small, then what we can write? This is I upon R. I upon R. ओके, आता काय म्हटलेलं आहे याच्यामध्ये, आणि अजून एक काय फॉर्म्युला लिहितो आपण, रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स टू 1 इज इक्वल्स टू V1 अपॉन V2. राइट. नाउ सी what happens ki the velocity is reduced by 20%, so V1 upon what? V2 किती झाली? 20% ने रिड्यूस झाली, म्हणजे किती उरली? 80%. How much is remaining? 80%. So that is 80% of V1. ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये 80% V1 upon 80% means what? 80 upon 100. Okay, of V1. So this becomes what? V1 cancel, 100 ऊपर जाएगा, तो ये क्या होगा? 100 upon 80. ठीक है, समझ लो. So you can write this as 10 upon 4 or 5 by 4. So refractive index is 5 by 4. Refractive index is 5 by 4. ठीक है. So I upon R is equals to what? 5 by 4. I upon R is equals to what? 5 by 4. ठीक है. हाँ, now what do you want to find out? Angle of deviation. Angle of deviation, and angle of deviation is what? Angle of incidence minus angle of refraction. ठीक है ना. ये देखो क्या होता है, this is angle of incidence, this is angle of incidence. और ये अगर मीडियम यहाँ नहीं होता तो ये रे कैसे ट्रेवल करता? स्ट्रेट लाइन में, राइट. लेकिन ये क्या हो जाता है, ये ऐसा बेंड हो जाता है, और ये एंगल ऑफ आर होता है, और ये होता है आपका एंगल ऑफ डेविएशन. तो एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकालेंगे आप? डेल्टा इज इक्वल्स टू आई माइनस आर. आई माइनस आर. आई माइनस आर काढायचं, कसं काढणार? आई माइनस आर काढायचं, तुम्हाला कसं काढणार? कसं काढणार? R is equals to what? R is equals to 4 upon 5 into I, है ना. So this is I minus 4 upon 5 into I. So this becomes 5 minus 4, that is 1. 1 upon 5. So this is I by 5. I by 5. ठीक है, समझला. ओके, असे क्वेश्चन येऊ शकतात. हा, करू ना आपण, सॉल्व करू. हाँ, second question. The angle made by incident ray of light with the reflecting surface is called glancing angle. It's called as what? Glancing angle. Angle made by incident ray with the reflecting surface. म्हणजे कोणता angle? हा angle. This is glancing angle.
ठीक है. Next, a ray of light is incident normally on glass slab of thickness 5 centimeter. The refractive index is 1.6. The time taken to ray travel by a ray from source to surface of glass slab is same as to the distance, sorry, as to travel through glass slab. The distance of source from the surface is. ठीक है. तो क्या बोला गया आपको? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ लगा रे? This is your first question, second, third question. So what is given? A ray of light is incident normally on the glass slab. यहाँ पे क्या है? This is the source of light. This is source. Then ये क्या है? ये ग्लास स्लैब है जिसकी थिकनेस कितनी है? 5 सेंटीमीटर है. जिसकी थिकनेस कितनी है? 5 सेंटीमीटर है. और ये जब रे ऐसा ट्रैवल करेगा, ओके, रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है? 1.6 है. राइट. सो दिस इज μ2 इज इक्वल्स टू 1.6. μ2 is equals to 1.6. The time taken to travel by a ray from source to surface of glass, source to surface of glass, right? Source to surface of glass is same to travel through glass slab. So what is given कि इसके लिए जितना टाइम लगता है, ओके, उतना ही टाइम ये सोर्स से सरफेस तक आने के लिए लगता है. ठीक है. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? यस बोलो. देखो अब ये जो थिकनेस होगा, लेट्स से दिस थिकनेस इज d1 और दिस थिकनेस इज से d2 एंड दिस इज d1. दिस इज व्हाट? d1. राइट. टाइम कैसा काटना? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. तर या मीडियम मध्ये वेलोसिटी किती? v1. या मीडियम मध्ये वेलोसिटी किती? v2. राइट. तर इथे टाइम किती लागेल? फर्स्ट केस मध्ये टाइम किती असेल? d1 अपॉन v1. d1 अपॉन v1. आणि दुसऱ्या मीडियम मध्ये किती लागेल? दिस इज ऑल्सो d2 अपॉन v2. d2 अपॉन v2. ठीक है. And so we can then equate this d1 upon v1 is equals to d2 upon v2. तो ये क्या हो जाएगा? d1 upon v1 is equals to what? d2 upon v2. d2 upon v2. Then अब हमें निकालना है d1. तो ये क्या हो जाएगा? d1 is equals to v1 upon v2 into what? d2. This is what? d2. समझ में आया? एंड v1 अपॉन v2 क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना. ये देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज v1 अपॉन v2. तो इसमें और इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ऑप्टिकल पाथ. इसको क्या कहा जाता है? ऑप्टिकल पाथ. ओके, दैट इज द डिस्टेंस इन एयर विच इज इक्विवेलेंट टू द डिस्टेंस इन डेंसर मीडियम. ठीक है. मतलब यहाँ पे जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम यहाँ पे लगना चाहिए, लेकिन डिस्टेंस अलग अलग हो जाएगा. और ये हो जाएगा d1 इज इक्वल्स टू व्हाट? v1 दैट इज μ21 इनटू d2. तो ये कितना हो जाएगा? μ21 ये कितना है? 1.6 इनटू d2. d2 कितना है? 5. तो ये कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर. ठीक है. समजला? ओके. आता अशा प्रकारे कॅल्क्युलेशन करायचं. सिंपल कॅल्क्युलेशन आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. In compound microscope, the focal length and the aperture of objective lens used respectively
तो फोकल लेंथ कशी असली पाहिजे, स्मॉल असली पाहिजे आणि ऑब्जेक्टिव्ह अपर्चर कसं असलं पाहिजे, लार्ज असलं पाहिजे. ठीक आहे, येस और नो, इट्स theoretical क्वेश्चन. फोर्थ, ओके. सो फोकल लेंथ कशी असली पाहिजे, शॉर्ट, आणि अपर्चर ओके. एकदा हे कन्फर्म करून घ्या, इथं आन्सर डी दिलेलं आहे, शॉर्ट अँड स्मॉल, बट आय थिंक इट शुड बी शॉर्ट अँड लार्ज. ठीक आहे, aperture gives you the resolving power and focal length gives you the ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. शॉर्ट एंड स्मॉल. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. The dispersive power of prism depends upon, dispersive power depends on what, बोलो. dispersive power depends on, अरे अभी बताया ना मैंने. dispersive power depends on material of prism, material of prism. देखो अभी फॉर्मूला लिखा था हमने, ओमेगा इज इक्वल्स टू म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई. तो म्यू व्हाट इज दिस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी किसके ऊपर डिपेंड होती है, मटेरियल के ऊपर. ठीक है, तो डिस्पर्सिव पावर भी मटेरियल के ऊपर डिपेंड होगी. नेक्स्ट देखो, और कॉन्वेक्स मिरर of focal length f forms an image at a distance 1 upon n times where n is greater than 1, the object distance, okay, the object distance from the convex mirror is. तो क्या दिया आपको, कॉन्वेक्स मिरर जो है उसकी फोकल लेंथ कितनी है, f, उसकी फोकल लेंथ कितनी है, f, and forms an image at a distance of 1 upon n, okay, then the object distance means what is given to you, what is given to you, हाँ, अरे काय दिलेलं इथं बघा, फोकल लेंथ दिलेली तुम्हाला किती आहे, फोकल लेंथ इज f, then image is formed at a distance, so that is what image distance, okay, f forms an image at a distance 1 upon n times the object distance, means image distance is 1 upon n times the object distance. ठीक है, then what do you want to calculate, the object distance of the convex mirror, object distance of the convex mirror, and all the answers are given in terms of refractive index and focal length, refractive index and focal length. ठीक है, means here you have to eliminate what, तो आपको क्या क्या eliminate करना है यहाँ पे, आपको v को भी eliminate करना है, n को भी u को भी eliminate करना है. ठीक है, और इसमें रिलेशंस क्या होता है,
इसमें रिलेशंस क्या होता है? व्हाट इज मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन क्या होता है? दैट इज v माई अपॉन यू, v अपॉन यू, ठीक है। और ये देखो तो v अपॉन यू क्या हो जाएगा रे? v अपॉन यू इज इक्वल्स टू व्हाट? 1 अपॉन n हो जाएगा ना। तो दिस इज माइनस 1 अपॉन n, m इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन n। ओके, और ये क्या है? मिरर है, तो मिरर के लिए हम क्या यूज करेंगे? मिरर फॉर्मूला। और मिरर इक्वेशन क्या होता है? 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू, हाँ, 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। और आपको निकालना क्या है? कौन सा डिस्टेंस? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मींस यू निकालना है, राइट। तो यू के लिए देखो ये क्या हो जाएगा? यू के लिए 1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू व्हाट? 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन वी, राइट, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा? हाँ, हाँ, यू निकालना है ना। कैसे? हाँ, ये देखो, ये इधर ही है, इसको मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया, तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन वी हो जाएगा। हमें यू निकालना है, राइट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? और v को हम क्या लिख दे यहाँ पे? सो दिस इज 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी, और v क्या है? u बाई n, u बाई n, ये देखो u बाई n, ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा। सो दिस इज 1 अपॉन एफ माइनस n अपॉन u, ठीक है। इसको इधर ट्रांसफर करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन यू प्लस n अपॉन u इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ, ठीक है। तो इसको यहाँ पे 1 अपॉन यू अगर कॉमन निकाल ले तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस n, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ, ठीक है। तो ये अगर इस तरफ ट्रांसफर कर दे हम, तो ये क्या बचेगा? 1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ इंटू 1 प्लस n, राइट। सो u क्या हो जाएगा? u इज इक्वल्स टू f इंटू 1 प्लस n, ठीक है, राइट। सो दैट इज योर थर्ड ऑप्शन, ठीक है। इमेज डिस्टेंस ला v यूज करो. इमेज डिस्टेंस ला v. हाँ, ये इमेज डिस्टेंस ला आपण v यूज करतो. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. U. ठीक है, समझ ला। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। A glass has refractive index mu
with respect to air, and the critical angle for the ray of light going from glass to air is theta. If the ray of light is incident, if the ray of light is incident from to glass, air to the glass, with an angle of incidence theta, the corresponding angle of refraction is. क्वेश्चन समझ लगा? ओके, ग्लास जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू है, with respect to air, and critical angle for the ray for a ray of light going from glass to air is theta. Critical angle for glass to air is theta. ठीक है? If the ray of light incident from air to glass with an angle of incidence theta again, the corresponding angle of refraction. Okay, so by Snell's law, what you write? बोलो. Sin? क्या लिखते हो रे? साइन आई अपॉन साइन आर. ठीक है, और आई कितना दिया है आपको? थीटा. आई कितना दिया है? थीटा. देन क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? ये देखो, म्यू टू इज इक्वल्स टू व्हाट? साइन थीटा अपॉन साइन आर, है ना? म्यू टू इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन साइन आर. और क्रिटिकल एंगल क्या होता है? साइन आई सी इज इक्वल्स टू व्हाट? 1 अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा. साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा, सॉरी, sin IC is equals to 1 upon mu 2. 1 upon mu 2. और आपको R निकालना है. आपको क्या निकालना है? R निकालना है. और क्रिटिकल एंगल भी कितना है? थीटा ही है. तो दिस इज 1 अपॉन म्यू 2. 1 अपॉन म्यू 2. तो म्यू 1 अपॉन म्यू 2 क्या हो जाएगा? 1 अपॉन म्यू 2. तो यहां से म्यू 2 क्या हो जाएगा? 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन साइन थीटा. इसको अगर यहां पे सब्स्टिट्यूट करें तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? 1 अपॉन 1 अपॉन सॉरी साइन थीटा अपॉन साइन आर. साइन थीटा अपॉन साइन आर. तो साइन आर इज इक्वल्स टू व्हाट? साइन आर इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा. साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है, समझ में आया? और साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन म्यू लिख सकते हैं. तो ये क्या हो जाएगा? साइन आर इज इक्वल्स टू व्हाट? 1 अपॉन म्यू स्क्वायर. 1 अपॉन म्यू स्क्वायर. सो देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ साइन आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन म्यू स्क्वायर. 1 अपॉन म्यू स्क्वायर. समझ लगा? नेक्स्ट क्वेश्चन.
झालं ही कॉपी करायचंय का? हल्ली काय किसका फोटो वगैरे लेना है क्या? चला next question. The magnifying power of telescope is 9. Magnifying power of telescope is 9. When it is adjusted for parallel rays, the distance between objective and eyepiece is 20 centimeter. The focal length of objective and eyepiece are respectively. Okay, very simple. So what is magnifying power of this telescope? टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर कितनी होती है? बोलो, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप क्या होता है ये? दैट इज m is equals to fo upon fe. fo upon fe, that is focal length of objective upon focal length of eyepiece. Focal length of objective upon focal length of eyepiece. Okay, this is the magnifying power. और ये आपको दी है कितनी है ये? This is given as 9. Okay, so this is equals to 9. That's what we can say, FO is equals to FE or 9 FE. 9 FE. और दूसरा क्या है? The focal length. हाँ, the distance between objective and eyepiece is 20 centimeter. Means what is that? That is FO plus FE is equals to 20 centimeter. Is equals to what? 20 centimeter. Now you can get this is 18 and 2. ये क्या होगा? 18 and 2. Because FE is equals to FO is equals to what? 9 times FE. 9 times FE plus FE is equals to 20 centimeter. Is equals to what? 20 centimeter. तो ये कितना हो जाएगा? Sorry, 10 FE and this is 20 centimeter. तो FE कितना आ जाएगा? 2 centimeter. तो FO कितना होगा? 18 centimeter. समझ ला? So FO is 18 and FE is 2. ठीक है, समझ लगा? Next question. The focal length of plano convex lens is equal to its radius of curvature. The focal length of plane convex lens or plano convex lens, actually क्या चाहिए? Plano convex lens is equal to its radius of curvature. तो आपको क्या बोला है कि ये this is question number 8 था. Now question number 9. Question number 9. तो देखो क्या दिया है इसमें, बोलो.
the focal length of plane convex lens, focal length of plano convex lens is equals to radius of curvature, is equals to what? Radius of curvature. ठीक है? The value of refractive index of the material is, yes, so what is the focal length of plano convex lens? What is the formula to calculate the focal length of plano convex lens? So that is 1 upon f is equals to क्या होता है रे? n minus 1 into or upon r, upon r. This is the focal length of plano convex lens. This is the focal length of plano convex lens. और आपको n की वैल्यू निकालनी है. क्या करना है आपको? n की वैल्यू निकालनी है, राइट? एंड आपको क्या बोला है कि f इज इक्वल्स टू r, f इज इक्वल्स टू r. तो क्या हो जाएगा ये अगर f इज इक्वल्स टू r है तो 1 अपॉन r इज इक्वल्स टू व्हाट? n माइनस 1 अपॉन r. तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और n इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 2. n इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 2. दिस इज लेंस मेकर्स फॉर्मूला फॉर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस. ये क्या है? लेंस मेकर्स फॉर्मूला फॉर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस. अरे कुछ तो ध्यान दो इधर यार, नासिक के बच्चे ऐसे ही होते हैं क्या सभी? हाँ? उधर क्रैश कोर्स चल रहा है, वहां पे भी ऐसा है, यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे भी ऐसा ही है. हाँ? अरे टाइम बोरिंग क्या है टाइम? हाँ तो सुबह 6 बजे लेना चाहिए. 6 बजे तो उठोगे भी नहीं. हाँ? नहीं तो 2 बजे तक तो क्रैश कोर्स खत्म हो जाएगा, है ना? 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 2 खत्म. हाँ? बीच में सिर्फ आधा घंटा ब्रेकफास्ट के लिए टाइम, बाकी घर पे जाके खा लो. क्या करें? हाँ ठीक है, 5 मिनट तो बस. हड़ू. ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन. अब तुमको भी घर जाना होगा. हाँ? आणलंय? झालं जेवण झालं? अजून बाकी? A beam of monochromatic light is incident on glass slab at an angle of incidence 60, and if r is equals to 30, then the ratio of width of beam in glass to air is. बोलो कैसे करेंगे अभी? नहीं मुझे नहीं आ रही. हाँ? क्या निकालना है आपको? A beam of monochromatic light is incident on glass slab at an angle of incidence 60, and r आपको दिया है कितना? 30. r आपको दिया है 30. Then नहीं, ऑप्शन ये नहीं है. Then the ratio of width of beam in glass to that of air, that in air width निकालना है आपको.
तो ये देखो क्या होगा, ये ग्लास स्लैब है, ये नॉर्मल है, ये आपको एंगल दिया है कितना, ये 60 है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये कितना है, 30 है, ये कितना है, 30। हाँ, ऑप्शन डी। ठीक है, कैसे फाइंड आउट किया? √3 की वैल्यू तो है। हाँ, तो आपको तो ये हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ग्लास अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एयर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एयर इज इक्वल्स टू, ये इसका फॉर्मूला आप नोट कर सकते हो, दिस इज cos r अपॉन cos i, cos r अपॉन cos i। ठीक है, ये देखो, तो जब हम साइन बोलते हैं, साइन r, तो एक्चुअली ये क्या होता है, दिस डिस्टेंस अपॉन दिस डिस्टेंस ना, यस और नो? जब हम cos बोलेंगे तो एक्चुअली ये डिस्टेंस होगा, दिस इज द विड्थ ऑफ दिस ग्लास। ठीक है, तो इसलिए cos को लेना है, राइट? तो ये हो जाएगा cos i r अपॉन r, आई सॉरी, दिस इज cos r अपॉन, तो ये क्या हो जाएगा, cos 30 अपॉन cos 60। तो cos 30 कितना है, हाँ, cos 30 इज √3/2 और cos 60 इज 1/2, तो 2 कैंसल, ये आ जाएगा √3 एंड दैट इज 1.73। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, a convex lens of focal length f is placed in contact with concave lens of same focal length. The equivalent focal length of the combination is, तो क्या दिया है आपको, क्वेश्चन नंबर 11, so 1/f is equals to 1/f1। और देखो पहला क्या है, a convex lens of focal length f is placed in contact with concave lens of same focal length, okay, then the equivalent focal length आपको पूछा है, तो ये होगा 1/f अपॉन 1 माइनस 1/f2, बिकॉज ये कॉन्वेक्स है और ये क्या है, कॉनकेव है, राइट? तो ये क्या हो जाएगा, और दोनों की फोकल लेंथ सेम है, इसको मैं r कर देता हूँ रिजल्टेंट, सो दिस इज 1/f माइनस 1/f, तो ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल्स टू एट 0, राइट? अब ये 0 कब होगा, जब fr के कितना होगा, इंफिनिटी होगा, fr कितना होगा, इंफिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, the critical angle of light going from medium x to medium y is theta. Okay, the speed of light in medium x is vx, the speed of light in medium y is, तो देखो आपको क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 12, a critical angle of light going from medium x to medium y is theta। ठीक है, तो मीडियम x से मीडियम y में जा रहा है, और यहाँ पे एंगल कितना है, क्रिटिकल एंगल कितना है, थीटा, क्रिटिकल एंगल कितना है, थीटा। ठीक है, द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम x इज vx, इसमें जो स्पीड है वो कितना है, vx है। देन द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम y, तो मीडियम y में उसका स्पीड कितना होगा, ये आपको निकालना है ना? तो क्या होता है ये बोलो, साइन थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, साइन थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 refractive index of this medium x, refractive index of medium x, है ना, refractive index of medium x, ये लिखा था ना क्रिटिकल एंगल के लिए,
क्रिटिकल एंगल के लिए ही लिखा था और आपको दिया है थीटा क्रिटिकल एंगल है। ओके, so this is 1 upon refractive index of denser medium, और ये क्या होगा, refractive index of rarer medium से, राइट। तो ये होता है साइन थीटा, ये होता है साइन थीटा, राइट, और ये होता है साइन आर, तो ये ऐसा आएगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज वी, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम y विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम x, और इसको हम क्या लिखते हैं, इसमें वेलोसिटी कितनी है, x है, vx, और सपोज इसमें कितनी हो जाएगी, vy, तो इसको हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी इन मीडियम 1, वेलोसिटी इन मीडियम 1 टू वेलोसिटी इन मीडियम 2, ठीक है, समझ में आया। तो ये क्या हो जाएगा, vx, और आपको निकालना क्या है, vy निकालना है, आपको निकालना है vy, तो vy क्या हो जाएगा, vx अपॉन साइन थीटा, vx अपॉन साइन थीटा, ठीक है, समझ में आया। ठीक है ना, ये किसके साथ रेशो लेना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कैसे भी लेके उसको सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है। ओके, तो ध्यान से ये देखो, ये साइन थीटा, दिस इज क्रिटिकल एंगल, इज इक्वल्स टू व्हाट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, और इसी को क्या लिखा जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, और ये क्या लिखा जाता है, वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम टू वेलोसिटी इन सेकंड मीडियम, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू vx अपॉन vy, तो vy इज इक्वल्स टू vx अपॉन साइन थीटा, ठीक है, सो vy इज इक्वल्स टू vx अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चंस ट्राई करो, है ना, करेंगे ना। ओके, कल ऑप्टिक्स का सेकंड पार्ट, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, ठीक है, एंड दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके, और वो लास्ट टॉपिक भी होगा हमारा, ठीक है।